Yes, sir. Okay, so today we are going to record this class 11 on Bill chapter 3, discovering Tut. The saga continues. Okay, and I'm going to show you something. I'm going to share the screen with you people. So what I have done in my PDF, I've actually tried to write the meanings. Okay, so that it can help you. Okay, Aniket, are you come? Have you come? Yes, sir. Okay, so this is Mr. Tut. He is looking like Aditya Dubey, yaar. Huh? खाली टोपी लगा देगा. He look like Aditya Dubey. Aditya Dubey is young, and this guy is also very young. Okay. So he was just a teenager when he died. Teenager, 13 to 19. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. माने इन लोग का एक टाइम ऐसा था कि ये लोग ही रूल करते थे, लाइक द मुगल्स इन इंडिया, या जो दिल्ली सल्तनत का टाइम था. तो लेकिन मुगल्स दे एक्चुअली रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इनका भी काफी लंबा टाइम से दे वर रूलिंग द कंट्री. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Laid to rest का मतलब when he died, he was actually buried and he was forgotten. उसको laid to rest माने उसका final journey is over. ठीक है. This is the discovery of his tomb in 1922. Now अब नया बात हुआ. उसका जो tomb है, हम लोग को पता है ना, हम लोग इजिप्ट से बहुत fascinated है. We are all fascinated with Egypt, है ना. We want to know about mummies. We want to know about the pyramids, the Sphinx. We want to know. We want to know more and more about Egypt. इजिप्ट के बारे में एक तो पता नहीं क्या, एक तो है सस्पिशन. सो वी ऑल वांट टू नो. तो जब उनका टूम का डिस्कवरी हुआ in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. Okay, is my voice echoing? Can you hear me clearly, all of you? Yes, sir. Okay. The modern world has speculated about what happened to him. Speculated मतलब सब ये सोच रहे क्या हुआ भाई, कैसे मर गया, इतना यंग था, राजा था, कैसे मर गया. ओके. With murder being the most extreme possibility, इसका मतलब यहाँ पे ये रहे, nobody believed that he was murdered. माने कोई नहीं मान रहा. माने अगर कोई बोलेगा what are the chances of getting murdered, only 1%. there's only 1%, 2% chance that he was murdered. तो किसी को नहीं लगता कि उसका मर्डर हुआ है. ठीक है. The murder being the most extreme possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. 80 साल के बाद, 80 years के बाद उसका हम लोग जो क्या नाम है मम्मी है, उसको वापस बाहर निकाल रहे हैं. Tut has undergone a CT scan. Okay. I hope not many of you have gone through CT scan. तुम लोग कभी देखा CT scan? एकदम बड़ा सा एक मशीन होता Yes. है, उसके अंदर घुसा देता है हेड फर्स्ट. ऐसा लगता है जैसे कि कहाँ घुसा रहा है, अभी Yes, अंदर घुस रहा, बाहर आएंगे कि नहीं. आदित्य, have you seen a CT scan? Yes. Have you undergone? I hope not. yes, sir. You have undergone. Oh my. Why? What happened No, to you? sir. CT scan is available in my hospital, so that's why I've seen, sir. In my In my hospital माने? father's hospital. Father's hospital, sir. माने you have a hospital, you have your own hospital. Yes, sir. क्या नाम से? Sir, Aditya Hospital, sir. Oh my God. And where is this hospital? In which state? Sir, Uttar Pradesh, sir, near Varanasi, sir. अरे वाह, चलो अब तो मेरा इलाज करने वहीं आएंगे आदित्य, है ना आदित्य. ठीक है. तो मेरे स्टूडेंट में ना यार डॉक्टर बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल नहीं था, अब हॉस्पिटल भी हो गया. चलो मेरा लाइफ सेट है. ठीक है. बाय द टाइम आई रिटायर, मेरे 3-4 बच्चे IAS IPS UPSC. ठीक है. 3-4 बच्चे एकदम सर्जन टॉप लेवल. ठीक है. किसी का वो है हॉस्पिटल. एक और स्टूडेंट है मेरा, उसका भी हॉस्पिटल है. बहुत सारे, टेंशन लेने का नहीं, लाइफ सेट है. ओके. कुमकुम, तुम क्या करेगी मेरे लिए? हाँ. Sir, UPSC. अरे वाह, एक और IPS मिल गया मेरे को. चलो मेरा लाइफ सेट है. आई एम द मोस्ट सेट टीचर इन द वर्ल्ड. सब मेरे बच्चे बाय द टाइम आई गो 60, मेरे सारे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे. रखेंगे ना. मैं एक तो स्कीम Yes, चलाऊंगा sir. कि जितने मेरे बच्चे हैं सब मेरे को 5000 रुपीज पर मंथ भेजेंगे. बस लाइफ सेट है मेरा. चले भाई, हम लोग की देखी थी कोई नहीं देंगे. अरे चलो एनीवेज. So Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. तो पहले इनका एक बार और चेकिंग हुआ है, बट उस टाइम हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी. अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, और हो सकता है 80 साल के बाद कोई और बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम इसके फिर से डेड बॉडी निकालेंगे और फिर से उस टेक्नोलॉजी में डालेंगे, क्योंकि हम लोग इतने फैसिनेटेड है, हम लोग क्यूरियस है. वी वांट टू नो क्या हुआ, क्या उस लड़के को. ठीक है.
and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. तो हम लोग को पूरा फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करके देखना है उसका एक्चुअली हुआ क्या, क्यों मर गया वो इतना यंग एज में, ठीक है, व्हाट वाज द कॉज। मर्डर तो शायद नहीं लग रहा कॉज, कोई बीमारी थी उसको या कुछ हुआ उसके साथ, तो वी वांट टू नो दैट नाउ। जैसे कल मैं तुम लोग को बता ही रहा था, फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस लोग भी हैं। हम लोग को लगता है भाई जो आदमी रेस्टेड इन पीस, रेस्टिंग इन पीस को डिस्टर्ब मत करो ना। तुमको डर लगता है भूत से? No, sir. नहीं लगता? आदि नहीं, तुमको? sir. सर थोड़ा थोड़ा सा। और अनिकेत को तो लगता है खुद ही भूत है वो, हम तो जानते हैं उसको, उसके तो आगे पीछे 4-5 लेके घूमता है वो, है ना अनिकेत? 3-4 तो तेरे हाँ पीछे सर, ही घूमते घूमते हैं। हैं, तेरे को क्या डर लगेगा? हाँ सर। ये खुद ही भूत है। An angry wind stirred up ghostly dews devils as King Tut was taken from his resting place in an ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. ठीक है, तो जहां पर तट को बरी किया गया था, वहां पे बहुत सारे राजा की मम्मीज है। बहुत सारा डिस्कवर भी नहीं हुआ है, इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिस्कवर्ड एवरी लाइक 6 months, एवरी टाइम इन स्पैन ऑफ टाइम हम लोग डिस्कवर करते रहते हैं। तो वहां पे जहाँ राजा लोग को बरी किया है उसको हम लोग वैली ऑफ किंग्स बोलते हैं, और वहां पर साइमल्टेनियसली एक जगह है जिसको वैली ऑफ क्वीन बोला जाता है, जहाँ पे क्वींस लोग को हम लोग बरी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका बॉडी बाहर निकाल रहे थे, थोड़ा सा जैसा होता है ना घोसली पिक्चर में, एक तो क्लाइमेक्स स्टोरी, बगल से हवा चलने लगी, ठीक है, पूरे बादल छाने लगे, काले होने लगे, और जो लोग है ना डर रहे हैं, अरे बाप रे यार क्या किससे पंगा ले लिया, बेचारा सो रहा था अच्छा खासा, काहे निकाला इसको, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि एलिमेंट्स जो है वो भी नहीं चाहते कि आप उनको डिस्टर्ब करो, ओके। सो एवरीथिंग बिकेम क्वाइट वायलेंट, पूरा एकदम सेटिंग ऑफ अ हॉरर मूवी का सेटिंग हो गया पूरा वहां पर, ठीक है। तो व्हेन ही वाज टेकन आउट, dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade gray. ऐसा लग रहा था कि बादल को भी मालूम है आज कुछ खराब होने वाला है, ठीक है। तो सारे दिन काले काले बादल मंडरा रहे थे। अब रात जैसे हुआ वो पूरा वहां पे सेट हो गए, और आप स्टार्स भी देख सकते हैं। जनरली आप इजिप्ट में जाओगे ना तो यू कैन सी अ वेरी माने बहुत आपको क्लियर होता है स्काई, तो आपको स्टार्स दिखते हैं। लेकिन इन लोग ने क्या किया, द क्लाउड्स हैड एक्चुअली पूरा व्हील्ड कर दिया। व्हील्ड का मतलब होता है पर्दा, ओके। तो व्हील कर दिया, तो स्टार्स वे व्हील्ड, ठीक है। तो माने एक तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर बॉडी को निकालोगे तो कुछ खराब होगा, ठीक है। हम लोग को भी लगता है बिल्ली रास्ता काट जाती है, पता नहीं, एक दो बार तो बिल्ली काट गई आदमी को, रास्ता क्या काटे। It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. ठीक है, तो अब उसका मम्मी को निकाला है हमने, और हेड फर्स्ट हमने सीटी स्कैनर के अंदर में डाला है। आदि को मालूम है अच्छा से सीटी स्कैनर में कैसे काम करते हैं, बहुत पैसा मिलता है ना आदि, अच्छी मशीन है कमाने की ना आदि, वेरी गुड। तो पूरा हेड फर्स्ट डाला अंदर, ठीक है, और वो जा गया अंदर। All afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground to pay their respect. अच्छा, तो पता है ना वर्ड्स फैल जाता है, एवरीबडी नो कि आज कुछ होने वाला है, देयर विल बी सम, उसके स्टैचू को निकालेंगे, तो टूरिस्ट लोग आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन लोग को पता था कि भाई आज कुछ होने वाला है, सिटी स्कैन होने वाला है, तो उसकी जो बॉडी है उसको निकालेंगे। तो टूरिस्ट कुछ ज्यादा ही थे, और वो लोग सब नीचे चले गए, रॉक कट जो टोम था, माने उसके नीचे था, वहाँ पे सब चले गए अपना अपना हिस्टोरियन ज्ञान बढ़ाने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वी विल सी एवरीथिंग, जाएंगे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे कैसा होता है नहीं होता। तो बहुत सारे वहां पे आए हुए हैं, and they gazed at the murals on the wall of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. तो वो लोग सब जो म्यूरल्स है, म्यूरल्स का मतलब ड्राइंग ऑन द वॉल्स, जिसमें सारा डायग्राम बनाया हुआ है, हो सकता है उसकी लाइफ के बारे में बनाया हो कि वो क्या करता था, क्या खेलता था, क्या खाता था, क्या पीता था, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट टुट वाज देयर। तो सब लोग म्यूरल्स को देख रहे थे, ठीक है। और गिल्डेड फेस का मतलब होता है, गिल्डेड बेसिकली अपन ने सीबीएसई में एक पोएम है, उसमें गिल्डेड का मतलब होता है सोना चढ़ा हुआ, ठीक है, माने किसी चीज के ऊपर, जैसे हम लोग का गोल्डन टेम्पल है ना, उसके ऊपर पूरा गिल्डेड है, वो ऊपर पूरा गोल्ड का काम किया हुआ। तो तुम देखेगा अगर ये तट का जो क्या ना फेस है वो भी गिल्डेड है, माने उसमें सोने का पानी चढ़ाया हुआ, और या फिर किसी मेटल का, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली सोने का। The most striking feature of his mummy-shaped
कॉफिन लिड। तो माने ये जो उसका लिड है वो गिल्डेड है, माने जो ऊपर का जो डब्बा है उसके ऊपर एक चेहरा है जिसके ऊपर पूरा गोल्ड है और वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। मेरा थंबनेल मैं भी डालूंगा इसके बाद, तुम लोग देखना, उसमें भी मैंने कुछ वही उसी तरह का किया है, तो यू विल अंडरस्टैंड। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम द गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ लोग है ना अनिकेत जैसे ऐसे किताब निकाल के पढ़ रहे हैं, अच्छा जैसे कि कितना इंटेलिजेंट है, होता है ना सर अपना पढ़ रहे हैं, ओ कितना हमको कितना पता है, ठीक है। तो वो लोग सब पढ़ रहे हैं उसके अंदर आज तक और सबके संग शेयर कर रहे हैं। Others stood silently, perhaps pondering such untimely death in the late teens. कुछ चुपचाप खड़े हुए हैं, खाली सोच रहे हैं। आदित्य मेरे को लगता है चुप ही रहता है, बेसी बात नहीं करता। और वैसे तुमको आदित्य बताऊं, तुम मेरे ख्याल से मेरे 50वें स्टूडेंट हो जिसका नाम आदित्य है। जितने भी सरनेम है ना इंडिया के, सारे मेरे स्टूडेंट हैं आदित्य नाम से, जितने सरनेम, ठीक है। मैं आदित्य के ऊपर एक ग्रुप बना सकता हूँ जिसमें खाली आदित्य ही होंगे। और वंडरिंग विद अ सिवर the Pharaoh's curse, that a misfortune falling upon those who disturbed him was really true. कुछ लोग थे कुमकुम जैसे जो चुपचाप से खड़े हुए थे, वो लोग डर भी रहे थे कि भाई कहीं सच में कुछ तो नहीं हो जाएगा, ऊपर से पत्थर तो नहीं गिर जाएगा मेरे ऊपर, मैं डिस्टर्ब करने आ गई इसको यहाँ पर, है ना। तो कुछ लोग डर भी रहे हैं लेकिन जा भी रहे हैं। टिपिकल है, जाएंगे मरेंगे लेकिन जाएंगे जरूर भाई, एक्सपीरियंस लेना है हमको। हाउ कैन आई लीव? A mummy is in a very bad condition because of what Carter did in 1920. अब वो जो मम्मी है वो फ्रेश नहीं है, ठीक है, उसका कंडीशन बहुत खराब है। सेट जाही हवास। नाउ जाही हवास जो है वो उन्होंने डिस्कवर नहीं किया, कार्टर नहीं किया बदमाशी, ओके। द पर्सन जिसने खराब किया है मम्मी को वो कार्टर है, ओके। और जो जाही हवास हैं हमारे भाई साहब, ये सेक्रेटरी हैं इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज के, माने हिस्टोरिकल आदमी है, म्यूजियम के हेड है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, तो उन्होंने पहली बार जब देखा, क्योंकि 80 इयर्स के बाद ये निकल रहा है, तो ऑब्वियसली इन्होंने भी पहले नहीं देखा होगा, इनका भी फर्स्ट टाइम है। तो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लुक ले रहे हैं अपना अंदर, और बोल रहे हैं कार्टर ने अच्छा नहीं किया। अब हम लोग बात करें कार्टर, होवर्ड कार्टर। That is what the British archaeologists who in 1922 discovered Turt's tomb after years of futile searching. तो मुझे पहला मैं आदि को गुस्सा आ रहा है कि इसने क्यों खराब कर दिया इसकी बॉडी, लेकिन ऐसा गुस्सा नहीं करते बेटा, क्योंकि वो बहुत दिन खोजा भी उसको, ठीक है। अगर वो नहीं खोजता तो हम लोग को मिलती भी नहीं। बेचारे ने बहुत मेहनत की, उसके बाद उसको वो बॉडी मिली, और उसको मिली तो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना गुस्सा नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता है, खराब कर दिया, कोई बात नहीं। Its content, though hastily ransacked in antiquity, was surprisingly complete. हो रहा है जैसे तैसे उसको भरा गया था, लेकिन फिर भी बॉडी कंप्लीट है, हाँ डैमेज कंडीशन में है पर कंप्लीट है, कुछ भी पार्ट मिसिंग नहीं है। They remain the richest royal collector ever found and have become part of the Pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. माने बोल रहा है ये जो हम लोग को मिला है ना, ये अगर इसका ऑक्शन किया जाए बाय चांस, तो मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली सबसे एक्सपेंसिव ऑक्शन होगा ये। माने इसका अगर ऑप्शन वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर किया जाए तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फाउंड, माने बहुत ही ऑब्वियसली अगर कोई उसको ऑप्शन में डालेंगे तो पैसा बहुत मिलेगा, ठीक है। और उनका जो टूम है, जो उनका जहाँ पे वो कॉफिन है, ठीक है, उसके अंदर में पूरा गोल्ड है, और ऐसा लगता है कि रिजरेक्शन होगा। रिजरेक्शन बेसिकली इज कमिंग बैक टू लाइफ, जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए बोला गया था दैट ही विल कम बैक टू लाइफ, so that is resurrection, ठीक है। It caused a sensation at the time of the discovery. जब मालूम पड़ा कि एक पिरामिड में हम लोग को एक मम्मी मिली है, और वो शायद टट की है। आई मीन टट वाज अ फेमस गाय तब भी और अब भी, तो पूरे दुनिया में सेंसेशन मच गया। जो हिस्टोरिकल लवर्स हैं, हिस्ट्री के प्यार करने वाले हैं, उनको बहुत मजा आ गया। तो हम लोग सब पता नहीं हिस्ट्री को, आई डोंट नो वेदर यू लाइक हिस्ट्री और नॉट, लेकिन मेरे से पढ़ेगा तो बहुत मजा आएगा। मेरे स्टूडेंट तो बोलेंगे अच्छा लगा, उनका बेस्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड लिटरेचर, ठीक है। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, अभी भी उसको बहुत अटेंशन मिलता है। सब भी बड़ा बॉल लकी यार, जैसे हमारा डूड है अनिकेत, बॉल जहाँ जाएगा हीरो, है ना, अटेंशन हर जगह। अनिकेत इज अटेंशन बॉय, जहाँ जाएगा उसको अटेंशन मिलेगा, है कि नहीं कुमकुम? लास्ट क्लास में भी हम लोग का जब हुआ था तो सबसे सुपर बॉय कौन था? अनिकेत। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट अनिकेत, ठीक है। Yes. आदि बोल रहा अच्छा हमसे ज्यादा स्मार्ट, कोई बात नहीं। बट टट वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वांट इन द आफ्टरलाइफ। अब जब टट को बरी किया गया तो उसके कॉफन में उसके काम की चीजें डाली गई। बोर्ड गेम, बोर्ड गेम मतलब जैसे चेस, लूडो होगा उस जमाने में, डू यू थिंक? आई डोंट नो, हाँ लूडो सर, नहीं होगा, लूडो होगा। लूडो नहीं होगा, So, वो एक तो अलग टाइप का लूडो होता है उन लोग का, चौपड़ बोलते हैं उसको अपन इंडिया में। खैर एनीवे so बोर्ड गेम्स होगा। अब ब्रॉन्ज रेजर, अरे भाई
है ना, आई एम बोलते ना, दाढ़ी वाड़ी बना के फिट रहना पड़ेगा। मानो 200 साल बाद जिंदा हुए, दाढ़ी ज्यादा हुई, कोई पहचाना नहीं तो शेव वेव करके रहो आराम से, ठीक है। अंडर गार्मेंट्स है, ऑब्वियसली अच्छी बात है। फूड फूड तो होना ही चाहिए, है ना। आदि, क्या नाम, आदि खाना वाना का शौकीन है कि नहीं? आदि, ये लड़का बात नहीं करता है क्या? गया उसका माइक दोबारा। उसका माइक गया क्या? नहीं, उसका चेहरा भी नहीं हिल रहा, वो स्टैटिक हो गया अभी, ठीक है। तो फूड एंड वाइन। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carton began investing his three nested coffins. तो बहुत दिन के बाद, months of carefully recording pharaoh's funerary treasures, पहले तो उसका ट्रेजर को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगा, भाई कितना है इधर उधर नहीं हो जाए कोई, तो पूरा लिस्ट बनाया गया। कार्टन began investing his three nested coffin, उसके संग 3 कॉफिन और था, माने 3 का वो पूरा एक तो ग्रुप था, उसको वो देखने लगा। Opening the first, he found a shroud adorned with a garland of willow and olive leaves. पहला वाला खोला तो उसमें एक श्राउड था जिसके ऊपर गार्डन ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स चढ़ा हुआ था, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। जो पहले वाला खोला ना, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स मिले, और वो सीजनल फ्लावर थे, माने जिस सीजन के फ्लावर थे। तो वो जो फ्लावर है, जैसे फॉर एग्जांपल लोटस के जो पेटल्स हैं, ठीक है, और जो वाइल्ड ये सब जितने भी फ्लावर्स हैं, कॉर्न फ्लावर्स जितने भी हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब वो मार्च और अप्रैल में पाए जाते थे, तो उसके जब फ्यूनरल में उसको चढ़ाया गया, तो हम लोग इससे एक रफ आइडिया कर सकते हैं कि जो बरियल हुआ होगा वो मार्च या अप्रैल में हुआ होगा, ठीक है। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual raisins had hardened, cementing that to the bottom of his solid coffin gold. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब वो बॉडी को निकालने गया, तो एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि बॉडी जो थी वो नीचे जो अपने कास्केट है उससे चिपक गई, ठीक है, तुम अपने कास्केट के संग वो चिपक गई। और चिपकने का कारण यह है कि वहां पे एक रेजिन्स थे। रेजिन इज बेसिकली द गम ऑफ अ ट्री, माने जो होता है ना पेड़ का गोंद, वो उसमें डाला गया था, रिचुअल था, माने वो धर्म के हिसाब से डाला गया था उसको। लेकिन वो जो रेजिन्स है, इट्स लाइक अ गम, तो वो सारे गम जो है वो बॉडी के संग लग के और वो नीचे कॉफिन में चिपक गए, तो एकदम पूरा सीमेंटेड हो गया। तो बॉडी कॉफिन से चिपक गई। अब ये बहुत प्रॉब्लम है, जब बॉडी कॉफिन से चिपक गई है तो निकालेंगे कैसे बाहर, कॉफिन के संग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। इट हैड हार्डेंड, सीमेंटिंग टैग टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, मतलब कितना भी ताकत लगा लो, कितना भी टान लो, वो खुलेगा नहीं। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर बोला क्या करें क्या करें, अब क्या करें, इसको कैसे निकालें, समझ में नहीं आ रहा। तो कार्टर अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की, ठीक है। अल्टीमेटली द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। अब तुमको पता है इजिप्ट इज अ बेसिकली डेजर्ट एरिया, तो वहां पर बहुत गर्मी होती है। तो अगर आप वहां पे आफ्टरनून में बैठ नहीं सकते, इतनी धूप होती है, इक्वेटर के पास में है वो, ठीक है, इजिप्ट। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको जो कॉफिन है इसको उठा के बाहर ले जाता हूँ, और जब इसमें सन रेज पड़ेगी, जो हीट पड़ेगी, तो हाँ हो सकता है कि जो रेजिन्स है वो हीट से मेल्ट हो जाए और हम बॉडी को निकाल सकें। तो सन इज हिटिंग लाइक अ हैमर का मतलब बहुत कड़ा धूप वहां पे पड़ने वाला है। तो उसने किया वो चीज, बट नहीं हो सका, ठीक है, वो बॉडी बाहर नहीं आया, ठीक है। He set the mummy outside in blazing sunlight that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. Nothing budged मतलब कुछ भी नहीं पिघला, कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। He reported with a scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limb and trunk before it was possible to raise the king remains. ठीक है। अब उसने रिपोर्ट किया है, रिपोर्ट का मतलब उसने अपना ऑफिशियली उसको नोट करवाया है कि दैट कंसोलिडेटेड मटेरियल, माने जो मटेरियल जम गया है, हैड टू बी चीजल्ड अवे। बोला मैं इसको निकाल नहीं सकता था, माने मैंने जानबूझ के बॉडी को डैमेज नहीं किया, अगर मेरे को बॉडी निकालनी थी तो मुझे चिजल अवे करना ही था, और जितने भी जो जम गया है उसको लिम्स के और ट्रंक के बीच में से जहां जगह मिले उसको काट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इन हिज डिफेंस अगर हम लोग बोले कि यार वो सही किया कि गलत किया, तो हम लोग बोल सकते हैं कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। माने अब जो जानकार लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कार्टर के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उसको वो मम्मी को स्टडी करना था, उसके पास टाइम कम था, क्योंकि वहां बहुत चोर होते हैं, वहां द थीव्स अराउंड, ठीक है। तुम देखोगे बहुत सारी पिक्चर देखोगे, मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3, वहां पे पूरे का पूरा लोग आते हैं चोरी करने के लिए, ठीक है। उनको लगता है कि बस कहीं से Yes. हमको कुछ मिल जाए ओपनिंग, और हम वहां पे, सबको लगता है कि बहुत वहां पर सोना चांदी होगा एंड वी विल जस्ट टेक इट। तो ऑब्वियसली जब लोगों को मालूम पड़ा कि कार्टर बाहर आएगा तो चोरों को तो पहले मालूम होगा, ठीक है।
तो उसका टाइम नहीं था. ओके, so if he hadn't cut the mummy free, thieves would certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. बोला चोर लोग क्या करते हैं, सर्कमवेंट का मतलब होता है उनको धोखा देके, उनको बेवकूफ बना के गार्ड्स को अंदर घुस जाते और वो रिप अपार्ट कर देते, पूरा का पूरा जो मम्मी है उसको टान टून के नोच नाच के सारा जितना गोल्ड वो लोग वहां स्नैच कर सकते थे सब निकाल लेते और पूरा उसको रिप कर देते वो लोग उसको. ठीक है. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. बोल रहा है टट के टाइम पे मैंने ये लोग जो है फैरो, इनके जो पैसे है ना, जैसे अभी भी सऊदी के जो किंग्स हैं उनका जो पैसा है भाई अनाप शनाप पैसा उनके पास. भाई टाइगर पालते पेट में. ओके, एक नहीं 6-7 टाइगर पेट है उनका टाइगर. आई मीन ओ माय गॉड. तो fabulously wealthy है. ठीक है. And they thought or hoped that they could take the riches with them. उनको क्या लगता था ना, हम तो मरेंगे अगले जन्म में भी लेकर जाएंगे. ठीक है, अपने संगी लेके जाएंगे भाई साहब, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी. आप कुछ नहीं मिलेगा तुमको आदित्य, टेंशन ना लो, सब लेके जाएगा वो लोग. ठीक है, आदित्य सर आकाश मुझे मिल जाए. अरे हॉस्पिटल से खुश रहे भाई, है कि नहीं आदि? आदि ये फिर अटक गया क्या भाई? तो अपना वाईफाई ठीक करा, No, वरना sir. मजा नहीं आएगा. अनिकेत का तो बहुत पैसा, उसको चाहिए नहीं किसी का पैसा, वो लेकर आया पिछला जन्म. ठीक है. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering golds. माने भरा पड़ा है भैया, पूरा शरीर में उसके गोल्ड ही गोल्ड है. Precious collars, necklaces, bracelets, rings, amulets. ठीक है. A ceremonial apron. ठीक है. तो कहता है amulets क्या होता है? Amulets are ताबीज. ठीक है. Apron, sandal, seats for his finger. माने फिंगर के ऊपर कवर किया हुआ है सोना. Toes, न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क. नया मास्क, उस जमाने में कोविड था लग रहा है, मास्क वास्क लगा के वो रखा कि कोविड आएगा तब भी बच जाएंगे. ठीक है. ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. टू सेपरेट Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. अब कार्टर के आर्मी लोग को उसको निकालने के लिए क्या किया उन्होंने, उसको पूरे जॉइंट उसके काट दिए. माने ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, सब काट काट के उन्होंने जॉइंट को अलग कर दिया. ठीक है. Once they had finished, they reassembled the remains on the layer in a sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The beds were tucked, now rest. फिर उन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी को पार्ट पार्ट में निकाला. ठीक है. सैंड पे रखा और फिर उसको जोड़ने के लिए उसको पैडिंग कर दिया. माने पहले तो पोस्टमार्टम की तो सीला होगा, फिर उसको कवर करने के लिए पैडिंग कर दिया जिससे किसी को पता नहीं चले. ओके. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. और आर्कियोलॉजी जो है आजकल बहुत चेंज हो गया है. ठीक है. माने आर्कियोलॉजी की सोच भी आजकल बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई. तो आजकल हम लोग ट्रेजर के पीछे नहीं भागते. ठीक है. हम लोग पहले आर्कियोलॉजी ट्रेजर ढूंढती थी, कहाँ गोल्ड है, कहाँ ये, उन लोग का मेन इंटेंशन था कुछ ट्रेजर पता करें. लेकिन आजकल आर्कियोलॉजी जो है वो मोर दिखते कि पहले के लोग क्या थे, क्या करते थे. ठीक है. लाइफ, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, कैसे मर गए. वी ऑल वांट टू नो ना अशोका कैसे मरा, वी ऑल वांट टू नो अकबर कैसे मरा, वी ऑल वांट टू नो कि क्या नाम है वो बिरबल का बेटा जो लाइब्रेरी से गिर गया, हुमायूं, वो कैसे मरा. ठीक है. तो हम लोग को ये सब जानना है. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और हम लोग जानने के लिए ना साइंस का यूज कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath their resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. माने कार्टर की डिस्कवरी के बाद उसका एक बार एक्सरे किया गया, तो वहां से हमको मालूम पड़ा कि उसकी ब्रेस्ट बोन और उसकी फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. फ्रंट मैंने कल बताया, ब्रेस्ट बोन इज दिस पार्ट ऑफ योर बोन. ओके, यहाँ और यहाँ पे सारी रिब अटैच होती है, तो वो थाई नहीं उसके मिसिंग है. टुडेज डायग्नोस्टिक इमेजिंग, अभी एक्सरे से बेटर है सीटी स्कैन. माने एक्सरे में जो नहीं आता वो सीटी स्कैन में पता लग जाता है. ठीक है. तो वो मोर सोफिस्टिकेटेड है, बेटर टेक्नोलॉजी है. तो हमने एक्सरे करके देख लिया, अब हम लोग सीटी स्कैन करा के देखेंगे. ठीक है. कंप्यूटेड टोपोग्राफी. So today diagnostic imaging can be done with computed topography or CT, by which hundreds of X-ray in cross sections are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. माने हम लोग पूरा क्रॉस सेक्शन लेते हैं बॉडी को, आप बॉडी को पूरा 3 डिग्री माने पूरा 3 डायमेंशनल से देख सकते हैं, साइड से, इधर से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह देख सकते हैं और आपको अंदर की सब चीज पता लग जाएगी क्या हो रहा है अंदर. ठीक है. And it could answer 2 of the biggest questions still lingering about him. How did he die? And how old was he at the time of death? तो 2 क्वेश्चन जो वर्ल्ड वांट्स टू नो. नंबर 1, कैसे मरा,
और नंबर 2 कि वो कितने एज का था जब वो मरा। ये तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आई विल गिव यू द आंसर, आई सेंड यू द आंसर, डोंट वरी। हम लोग अभी आंसर्स भी डिस्कस करेंगे इस मीटिंग के बाद। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ओके, King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line and his funeral was a death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and his aftermath are unclear. माने किंग टूट जो था वो जब मरा होगा ना तब भी एक माने एंड ऑफ द एरा हो गया, क्योंकि वो राष्ट्र राजा था। उसके बाद कोई उस लोग की फैमिली का, उन लोग की डायनेस्टी का कोई नहीं आया। तो उस जमाने में जब वो मरा था, इट वाज अ बिग इवेंट कि भाई चलो आखिरी, माने इट वाज नॉट अ गुड इवेंट, लेकिन आखिरी फैरो जो है वो मर गया। तो एंड ऑफ अ रूल, एंड ऑफ अ सक्सेस, एंड ऑफ अ डायनेस्टी, ठीक है। एक टाइम जैसे हम लोग का मुगल एंड हो गया, ठीक है, हम लोग का सब कुछ एंड होता है, ब्रिटिश रूल भी एंड हुआ, तो हर चीज का एंड होता है। तो इनके साथ इन लोग की डायनेस्टी का एंड हो गया। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty golden age. A decade is 10 years, you know, है ना? Decades होता है 10 years का। तो Amenhotep, जो कि उसके फादर भी हो सकते हैं या ग्रैंडफादर भी, हम लोग क्लियर नहीं है, वो 40 साल से वहां पे रूल कर रहे थे जब उनकी डायनेस्टी बहुत स्ट्रांग थी। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of the ancient Egypt. अच्छा, ये Amenhotep के जो बेटा था ना, जो उसके बाद आया 3 के बाद 4, ये बड़ा अजीब आदमी था। माने इसने आके कुछ ऐसा किया जो उनकी डायनेस्टी में कभी किसी ने नहीं किया, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, देयर इज ओनली ऑलवेज अ डार्क शीप एक फैमिली में, तो यू कैन कंसीडर हिम एज अ डार्क शीप। इसने आके पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, ठीक है। ये जो Amenhotep आया, दिस न्यू pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk. इसने बोला भाई अब हम लोग किसी को पूजेंगे नहीं, हम लोग कोई पुराने भगवान को नहीं पूजेंगे, हम लोग नए भगवान को पूजेंगे, और वो होगा सन डिस्क, माने हम लोग बेसिकली सूरज को पूजेंगे, ठीक है। अपना नाम भी उसने चेंज कर दिया, उसका नाम था Amenhotep, ठीक है। तो Amenhotep जो होता है, Amenhotep जो होता है वो एक्चुअली एमन जो है वो उनके कोई गुरु होंगे, उसके हिसाब से डायनेस्टी चल रहा था, लेकिन उसने अपना नाम चेंज कर लिया टू Akin, या उसने कहा Akhenaten अपना नाम रख लिया उसने। He changed his name to Akhenaten, okay? From Amenhotep उसने अपना नाम रख लिया Akhenaten, okay? देखो 18 लास्ट में लगा हुआ है और यहाँ पर भी 18 है, तो दैट मींस Akhina का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द 18। तो मैं 18 का नौकर हूँ, माने ही वाज टोटली डेडिकेटेड टू द सन डिस्क। तो उसके भगवान उसने चेंज कर दिए। उसने और भी बहुत काम किए। He moved the religious capital from the old city of the Thebes to the new city of Akhenaten। उसने क्या किया, Akhenaten बोलेंगे इसको, Akhenaten सिटी भी चेंज कर दी उसने, माने अपना कैपिटल भी चेंज कर दिया। अब उसको नोन एज, अभी उसका नाम है अमारना। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. तो ये लोग जितने भी थे, देखो इनका नाम था Amenhotep, ठीक है, बिकॉज ये लोग आमुन गॉड को मानते थे। इसने क्या किया, उस आमुन को ही, जो उनके माने पूर्वज के जमाने के भगवान थे, उनका सारा मूर्ति तोड़ दिया, उनका मंदिर तोड़ दिया, माने जो इनका मान्यता चली आ रही थी उसके विपरीत ये काम करता है। आई डोंट नो व्हाई, माने ये इसी के लिए इसको थोड़ा वैकी भी बोला जाता है। पागल है, क्या कर रहा है, माने इतनी साल की जो डायनेस्टी है, जितना साल का उनका जो मान्यता है, सबको ही हटा दे रहा है। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सन। द साइट ऑफ द एंशिएंट थीव्स the family had ruled for centuries was coming to an end, and then क्या नाम है, Akhenaten went a little wacky। और ये पूरी ऐसी डायनेस्टी खत्म होने वाली है, माने देखो दादा बेटा और अब ये टूट, इसके बाद तो कोई है नहीं। और उसके लास्ट में जब ये फैमिली का पूरा टाइम खत्म होने वाला है, तब ये Akhenaten थोड़ा सा पागल हो गया, ठीक है। ही इज बिकम लिटिल wacky। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, व्हाई डू यू कंसीडर Akhenaten टू बी लिटिल wacky, ठीक है, बिकॉज उसने वो किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smunkare appeared briefly and exited with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne। उनके बाद एक और जन आया, मे भी कोई होगा उनका जान पहचान का, लेकिन वो बेसी दिन टिका नहीं, और उसके बाद टुटनखाटुन जो है हमारा, टुटनखाटेन जो है, उसको राजा बनाया गया बहुत ही यंग एज। King Tut, as is widely known today, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, the boy soon changed his name as Tutankhamun, living image of Amun। देखो ये फिर से आमुन को मानने लगा, ठीक है, माने वो जो 20 टाइम के लिए जो भगवान चेंज हुए थे उसको छोड़ के वापस से पुराने ऑर्डर में आ गए। एंड ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज।
He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उसने सारे मंदिर बंदर बनवाए, काम किए, लेकिन वो 9 साल के अंदर अचानक मर गया. He ruled only for 9 years. Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. बोल रहे इजिप्ट में इतने सारे मम्मीज हैं, किसी को नहीं पता, अभी तक हम लोग को नहीं पता कितना. It is one of the mummy. The Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, has already recorded almost 600 so far and is still counting. 600 मम्मी ऑलरेडी निकाल चुके थे 2003 में. तुम लोग के लिए एक तो प्रोजेक्ट वर्क है, पता करो 2021 तक कितना डिस्कवर हो गया. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated. अच्छा, अब हम लोग को आखिरी चैप्टर के आखिरी पॉइंट में आ गया. I don't know whether we will be able to complete or not. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens is manufacturers. King Tut is one of the first mummy to be scanned. अब हम लोग उसको स्कैन करने जा रहे हैं. स्कैनर हम लोग को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने प्रोवाइड किया है. In that as in life, moving regally ahead of his countrymen. माने ये पहला मम्मी है जिसका सिटी स्कैन होगा. तो बोल रहा है जब जिंदा था तब भी नंबर 1 पे था, मरने के बाद भी नंबर 1 पे है. पहला काम इसी का होगा. ठीक है, पहला सिटी स्कैन इसी का होगा. A city machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-rays images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slice to register its intricate structure takes on airy detail in a resulting image. Airy माने dangerous. एक एक चीज का डिटेल पूरा आ गया. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of gilded burial shrine protected for so long. ठीक है, ये जो गिल्ड गॉडेस है इनका नाम है ऑसिरिस. ठीक है, वो ऑसिरिस जो भगवान है उनका माना जाता है इजिप्शियन लोग के कि वो सब जो डेथ होते हैं उनका प्रोटेक्ट करते हैं. तो टूट को जो प्रोटेक्ट करी थे वो ऑसिरिस है. तुम्हारे बुक में पिक्चर भी है नेक्स्ट पेज में. ठीक है, देख लेना, अभी इसमें भी देखिएगा. लेकिन जिस दिन उसको स्कैन करना था ना, बहुत स्कैरी नाइट था. रातों को लोगों को डर लग रहा था कि हम कुछ गलत तो नहीं करेंगे, कल हम एक तो डेड बॉडी के संग खिलवाड़ करने वाले. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearers. You know who are pallbearers? जो dead body के आगे आगे चलते हैं. ठीक है, they climbed the ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into a trailer that held the scanner. माने सब लोग बॉडी लेके बाहर निकल रहे हैं अभी. ठीक है, और वहां पर एक तो लिफ्ट से वो लोग ऊपर उठे और वहां पर एक क्या नाम है वो रखा हुआ है, क्या नाम है तुम्हारा ये ट्रेलर इज लाइक अ लॉन्ग ट्रक, बड़ा सा ट्रक टाइप का रखा हुआ है, उसके अंदर स्कैनर रखा हुआ है. तो वहां पर बॉडी लेके जा रहे हैं. 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic pens. मैंने 20 मिनट के बाद कुछ गड़बड़ हो गया अंदर और 2 आदमी बाहर निकल कर आए. ठीक है, उनको पंखा चाहिए, पंखा. तो मैंने लग रहा सबको कि होगा नहीं, माने आप इसको स्कैन कर रहे हो, कुछ ना कुछ भगवान आपत्ति लाएगा, इतना आसानी से नहीं होगा. The $1 million scanner had quit because of a sand in a cooler fan. माने जो $1 million स्कैनर जो था, जो उसको बहुत गर्मी निकलता है, उसके लिए कूलर लगा था, लेकिन कूलर में सैंड घुस गया तो मशीन काम करना बंद कर दिया. तो सबको लगा ये कर्स है पक्का, ये होने नहीं देगा. कर्स ऑफ द pharaoh, जो द गॉड नर्वसली. इतना आसान थोड़ी है. ठीक है, लेकिन इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. जो नकली फैन आया था वो काम कर गया. ठीक है, आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैज बीन लॉस्ट, the technician turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. जब सारा काम हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, वापस दिया गया, वापस उसको ले जाके टूम में रखा. ठीक है, less than 3 hours after he was removed from his coffin. 3 घंटा पहले लेकर गए, 3 घंटा के बाद वापस उसको रख दिया. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. वापस से भैया हाथ जोड़ा, रखा उसको अपना जगह. भाई कौन है सब डेड बॉडी लेके हुए पागल, वापस रखो भाई, डालो सारा मंत्र वंत्र मारो, बंद करो. ठीक है, सब शांति से जिया. Back in a trailer, a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen. माने आप वो लोग देख रहे हैं आस्ते आस्ते कि क्या दिख रहा है. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy classes. ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं वैसे पूरा पूरा पीछे का नेक था उसका, vertebral column दिख रहा है. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. ठीक है, sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. अब जो जाही हवास है वहां का जो हेड है वो शांति लिया. हाँ भाई बच गया मैं, पता लगता पंखा टूट के मेरे ऊपर ही गिरा, गया डेड बॉडी को निकाल के वापस रखा. यार वो शांति से बचूंगा. But I didn't sleep last night.
not for a second he said, I was so worried, but now I think I will go and sleep. और एक रात पहले उसको नींद नहीं आया, कल डेड बॉडी के संग छेड़छाड़ होगा. ठीक है. This is Osiris. Okay, ये goddess Osiris है, and this is supposedly Tut, जिनकी वो take care कर रही है. Okay. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind has stopped. इतनी देर से क्या हो रहा था, तेज हवा चल रही थी, बादल थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ सब शांत हो गया, हवा शांत हो गई, ठीक है, सब कुछ शांत हो रहा आस्ते आस्ते, ठीक है. The winter lay cold and still like death itself. और हवा भी इतनी शांत हो गई जैसे मौत के बाद आदमी शांत हो जाता ना, वैसे शांत हो गई. In this valley of the departed, just above the entrance of the tomb stood Orion. और जहां पर उनका बॉडी था, उसके ऊपर ओरियन जो है ना, एक तो कॉन्स्टेलेशन है, वो ऊपर आके खड़ा हो गया. ऐसा लग रहा है जैसे ये इसको चेक कर रहे हैं, यहाँ से ठीक से रखा है तो कोई गोल्ड वोल्ड चुराया तो नहीं. ठीक है. Just above the entrance to the tombstone stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris. बोलते हैं ये ओरियन जो है वो एक्चुअली ऑसिरिस की आत्मा है. ठीक है, तो वो वापस से आ गई है और वो गेट पे चेक कर रही है कि ठीक से सब काम हुआ है. द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. ठीक है, और वो जो है वो उस बॉय किंग को वॉच कर रही है. ओके, मजा आया? Yes, sir. बोरिंग था चैप्टर? हाँ, सर. बहुत जन बोलते बोरिंग है. नहीं सर, नहीं, बोरिंग sir. नहीं, इंटरेस्टिंग है. चलो अभी हम लोग वीडियो स्टॉप कर रहे हैं. ओके, तो सब एंजॉय करें एंड शेयर करें वीडियो को.